Okay, today we're going to start turnover. Okay, turnover. Okay, so what is the meaning of turnover and what is the meaning of profit? Whether turnover and profit are equal? Okay, this may be the question. Hello, first of all, tell me whether I am audible or not. Yes, sir. Okay, so listen it very carefully. That what is turnover first of all, and what is called the profit. Okay, you need to understand this basic. As we have, or some of us have the perception created in our mind that turnover means profit. No. Turnover means something different, and profit is something different. For example, say 900 crore turnover. The company has 100 crores of turnover. So what is the meaning of that? 100 crores of turnover means what? 100 crores of profit? No. Turnover means continuously repeating the process, continuously repeating. So total value, say for example, the total value of the sales, okay, or revenue or profit that is generated by doing a business for a lump sum period of time, okay, and this can be measured by the sales and efficiency and performance of any company. Okay, suppose, say, for example, the company has 100 crore turnover every year. So, what does it mean? Means total value of the sales. Total, not profit. I'm not talking about the profit. I'm talking about the total value of sales. Say, for example, Tata Motors manufacturing every year, say, for example, 100 cars, 100 modified electric vehicle. Okay, 100 modified electric vehicles Tata Motors sell every year in the market. Now, say for example, Tata Motors has gross turnover, or sorry, say turnover 100 crore. What does it mean? It means that the total value of the car, that is 100 car every year, that he sells every year, which is being generated by the business for a specific period of time. That is called turnover. Say, for example, Tata Motors selling 100 electric vehicles every year. Now, Tata Motors group of chairman has made a specific, given a specific period that within a 5 long years, we will going to sell 1000 car. So, how the turnover will going to be measured? The turnover will going to measure the total value. टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द एसेट, द वैल्यू ऑफ द कंपनी, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ द सेल्स, द वैल्यू ऑफ द लेबर, everything on that is depend on the total value of sales. Okay, by doing the business for a specific period of time, for a limited period of time, that is called turnover. And what is profit? Profit means financial gain after deducting all expenses and cost from the revenue generated. It is comes profit. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 है, आपने 100 रुपया को रोटेट किया, आपने 100 रुपया इस एक, से फॉर एग्जाम्पल किसी को कर्ज दिया, से फॉर एग्जाम्पल एक्स को आपने 100 रुपया दिया, वहां से आपने 5 रुपया कमाया, एक्स बी को, एक्स वाई को और 100 रुपया आपने दिया, वहां से आपने 5 रुपए कमाया। तो फिर आप 2 दिन के बाद देखोगे आपके पास 205 रुपया आ रहा है। तो 200 का हटा के जो 5 रुपया बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है। और ये जो 200 रुपया है ये टर्नओवर है, ये टर्नओवर है। बार बार इस चीज को आप रोटेट कर रहे हो। अब क्या होगा? अब प्रॉफिट में से आपसे, अपने प्रॉफिट में से 5 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, से फॉर एग्जाम्पल 4 रुपया आपका प्रॉफिट, सॉरी 5 रुपया इसको, 5 रुपया इसको, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब क्या करोगे आप? नेक्स्ट में 105 रुपया आपने दिया और किसी को और एक जन को 105 रुपया दिया, तो आपके पास एंड कैसा आ गया?
120 रुपये आपके पास आया, तो 200 रुपया हटा के 220 रुपया आया, तो 200 रुपया हटा के आपका प्रॉफिट जनरेट 220 हुआ। ठीक है, आपका चला टर्नओवर कितना हुआ, 200 हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपया हुआ। अब क्या करते हैं, फिर 220 को हम फिर टर्नओवर 1 साल के लिए फिर लगा देते हैं। 1 साल के लगाने के लिए एक जन को एक्स को सोचो आपने 110 120 रुपया 220 हुआ ना, 110 रुपया इसको दिया, 110 रुपया उसको दिया, फिर आपने वहां से कुछ प्रॉफिट कमाया, फिर उसको लगाया। इस तरह से जो प्रॉफिट हम कमाते हैं वो उसमें से हम सब कुछ माइनस करके जो हमारे पास बचता है दैट इज प्रॉफिट। माइनस क्या करना है, आपके एक्सपेंसेस, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आपका लेबर कॉस्ट जितने भी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ जब घटा के आपके पास जो पैसा आप लेके आते हो दैट इज प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और ये बार बार जो पैसे को रोटेट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। एम आई क्लियर? तो व्हाट इज टर्नओवर एंड व्हाट इज प्रॉफिट? टर्नओवर इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट। प्रॉफिट मींस financial gain after all deductions, after all expenses that has been incurred from their original asset, what is the balance remaining in your hand, that is called profit. And what is turnover? Turnover refer to the total value, टोटल वैल्यू। मैंने बताया ना, अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो ये आपका टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू। अब इस 100 रुपया में आपने 100 रुपया 100 मतलब 100 रुपया आपने किसी को दिया, ठीक है, वो आपका टर्नओवर है। अब वहां से आप प्रॉफिट गेन करके आप लास्ट देख रहे हो कि आपके पास सब कुछ घटा के 105 रुपया मतलब 5 रुपया बच रहा है। इसका मतलब मेरा पहले का टर्नओवर सेल्स करके जो मुझे मिला 100 और मेरा प्रॉफिट 5 ऐड करने से 105, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ है 5 रुपया। इसमें सब डिडक्शन करके आपका प्रॉफिट बचा 5 रुपया, और ये जो 100 रुपया है ये आपका मूलधन है। ये 100 रुपया जो है मूलधन है, एसेट। इसका मतलब ये नहीं कि लाखों का टर्नओवर है, का मतलब आप समझ लेते हो कि इसके पास लाखों का प्रॉफिट है, नहीं। प्रॉफिट इज डिफरेंट, टर्नओवर इज डिफरेंट। समझ में आया? इज इट क्लियर? अनदर Yes, पॉइंट sir. इज दैट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, इसको मेजर कैसे करते हैं, हाउ वी मेजर द टर्नओवर। सो इट इज मेजर ऑफ कंपनीज operational efficiency and sales performance. Okay, it is a measure of companies operational efficiency and sales performance. ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सेल्स परफॉर्मेंस मिलके हम इसका मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस, इट इज मेजर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने का बेस्ट तरीका है, इस कैसे करते हैं, अगर आप कंपनीज का ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब लेन देन, दुकानदार जैसे लेन देन कहते हैं ना, उसे इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और आपका सेल्स परफॉर्मेंस, आपका सेल्स कैसा है, उसके ऊपर आपका निर्भर करता है। दैट इज टर्नओवर को इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द की डिफरेंसेस बिटवीन रेवेन्यू प्रॉफिट? देखो ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स है, दिस टॉपिक कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल टॉपिक्स, मे बी one or two questions you will get at the time of examination, maybe of multiple choice questions or short notes. So okay, understand the concept first. It is better to understand the concept apart from uh, go and read by heart. अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो यू कैन मेड योर आंसर्स ऑफ योर ओन, आप अपने से आंसर बना सकते हो। लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इट्स ऑल गोज इन विन, जितना भी पढ़ लो कंसेप्ट आपका कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, लिख नहीं पाओगे। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द कंसेप्ट, कि कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। अब देखो दूसरा है, पहले तो रेवेन्यू और सॉरी टर्नओवर और प्रॉफिट के बारे में बताया। नाउ नेक्स्ट कम टू रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज प्रॉफिट? अच्छा,
टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर जो होता है वो बेसिकली फोकस करता है ऑन टोटल रेवेन्यू। ओके, while profit focus on financial gain and expenses। now अब बोलोगे सर रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, बारीक डिफरेंस है। बारीक डिफरेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट जो होता है फिनेंशियल गेन, आपका जो मॉनिटरी गेन हो रहा है उसी में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट होता है। ये एक पार्ट है, सिंपल पार्ट पहले समझ लो। प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल गेन, मतलब आपके है पैसा कितना आपके पास आया है वो कैलकुलेट हो रहा है। कागज का गांधी जी का नोट आपके पास कितना है वो उसमें कैलकुलेशन होता है। लेकिन रेवेन्यू जो होता है वो टोटल टर्नओवर के ऊपर होता है। ओके ओके, टर्नओवर के ऊपर होता है टोटल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का टर्नओवर अगर 100 करोड़ है तो उस कंपनी का क्या देखा जाता है? उस कंपनी का टोटल लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, मिड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ओके, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सब कुछ मिला के टर्नओवर देखा जाता है। ये सब कुछ मिला के टर्नओवर देखा जाता है। और ये सब कुछ जब मॉनिटरी में गिना जाता है, ये सब कुछ जब पैसों में तोला जाता है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। अगर मैं आपसे कहूं कि सौरव गांगुली का, फॉर एग्जांपल सौरव गांगुली का नेट वर्थ या टोटल टर्नओवर कितना है, मैं आपसे बोलूंगा 120 करोड़। तो 120 करोड़ सालाना, 120 करोड़ मतलब क्या? वो पैसा का टर्नओवर नहीं। सौरव गांगुली का जितना प्लॉट है, जितना बिल्डिंग्स है, जितना उसका इन फ्रेंचाइजी है, जिसका जितना उसका एडवर्टाइजमेंट फ्रेंचाइजी है, जितना उसका मतलब क्या बोले एंडोर्समेंट है, वो सारा मिला के उसका खड़ा होता है 120 रुपीज। 120 रुपीज नहीं, 120 करोड़। दैट इज कॉल्ड टोटल टर्नओवर ऑफ सौरव गांगुलीज नेटवर्थ। ओके, 120 करोड़ का नेटवर्थ, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है। अब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू कैन बी कैलकुलेट ऑन टोटल टर्नओवर, जिसमें हम जितना ज्यादा टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे उसमें रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है इज पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, इट्स अ पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल करूं, एंडोर्समेंट से सौरव गांगुली सपोज इतना कमाता है, फ्रेंचाइजी से इतना इनकम होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंडोर्समेंट से उतना होता है, ठीक है। क्रिकेट से इतना होता है, कोचिंग से इतना होता है। उनका कुछ स्कूल भी खुला है कलकत्ता में, कुछ स्कूल है वो खुला है, कुछ स्कूल का फ्रेंचाइजी उन्होंने लिया है, उससे उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हुआ। तो दीज ऑल आर कैलकुलेटेड अंडर रेवेन्यू। अंडर रेवेन्यू, अंडर रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स पेमेंट करना, गवर्नमेंट को टैक्स देना, ठीक है। और भी जो जो टैक्सेस है वो सब कुछ कैलकुलेट करके इतना खड़ा हो, इसका इतना जनरेट होता है। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट फिनेंशियल के ऊपर होता है। फिनेंशियल का मतलब गांधी जी के नोट के ऊपर प्रॉफिट गिना जाता है। और लेकिन ये सब किससे होता है? ये सब मार्केटिंग, सेल, फ्रेंचाइजी, एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजमेंट, लेबर टैक्स, ऑल टैक्स, एम्प्लॉय टैक्स, एम्प्लॉय पेमेंट, ये सब कुछ को जोड़ के उसका टर्नओवर कितना है वो गिना जाता है। समझ में आ गया? सर तो फिर मतलब इसी को सर रेवेन्यू कहते हैं ना? क्या इसी को रेवेन्यू कहते हैं? नहीं, बोलने का मतलब है सर कि हम लोग जितना फ्रेंचाइजी वगैरह एडवर्टाइजमेंट है, ये सब जितना टर्नओवर होता है तो उसमें उसको रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू टोटल जनरेट जितना, होता है, हाँ जनरेट होता है, रेवेन्यू ओके ठीक जनरेट, है हम, हाँ, ओके ओके। रेवेन्यू उतना और जनरेट होता है। ओके। टोटल और टर्नओवर का मतलब होता है जितना उसके पास एसेट है उसका रोटेशन करना, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। उसका जितना रोटेशन करना, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर, ठीक है। एक जमीन पड़ा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ भी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है, उसका कोई टर्नओवर भी नहीं है, वो सिर्फ पड़ा हुआ है, तो आप उसे टर्नओवर में नहीं गिन सकते हो। टर्नओवर उसे गिनता है जिसमें बार बार रोटेशन होता है। एवरी पीरियड, मैंने पहला वाला स्लाइड में क्या पढ़ा है आपको?
फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैं पहले वाला स्लाइड में जाइए थोड़ा सा, प्लीज गो टू द स्लाइड। क्या लिखा है टर्नओवर का रेफर? टर्नओवर रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द सेल्स और रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए मेरे कंपनी का टर्नओवर ये है। फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपके पास टोटल जितना एसेट है उसका टर्नओवर ये निकल के आ रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टोटल वैल्यू के ऊपर। इसको कंपनीज का कैसे इसको मेजर किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है कंपनीज का ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देख के। मतलब क्या है, बात को समझो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी का लेन देन, एक जमीन पड़ा हुआ है कंपनी का, उसका कोई लेन देन कुछ नहीं है, पड़ा ही हुआ है, उसको पड़ा ही हुआ है, उसका अभी तक उसका यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। आप उसे टर्नओवर में या रेवेन्यू में या प्रॉफिट में से गिन नहीं सकते हो, पड़ा हुआ है ऐसा, उससे आप कुछ काम ही नहीं ले रहे हो, तो आप उसे टर्नओवर में गिनोगे कैसे? यहां पर ये लाइन क्या लिखा है, एक एक लाइन का मतलब होता है अभिजीत। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सेल्स परफॉर्मेंस। आपके घर का जमीन पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपका जहां आप रहते हो या आपका जहां घर है, वहां का जमीन आपके पास है, आपके नाम पे जमीन अलॉट है, लेकिन आप उस जमीन से कुछ फायदा नहीं ले रहे हो, आपके नाम पे है, बस इतना ही है। ना आपने उसने कुछ ने भाड़ा लगाया आपने, ना आपने उसने जमीन किसी को दिया है ताकि वो खेती करे, खेती बाड़ी करे, उससे प्रॉफिट आप जनरेट करो, उससे आप कुछ काम में लगाओ, वो सब कुछ नहीं, वो पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या, वो एसेट क्या है? वो एसेट इनमोबिलिटी एसेट है। अब पढ़ाने जाऊंगा ना, अकाउंटेंसी पार्ट आ जाएगा। मोबिलिटी एसेट, इमोबिलिटी एसेट, दैट इज कॉल्ड इमूवेबल एसेट। आप उसका कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो पड़ा हुआ है, आपने खरीदा है, उसे रख दिया। सोच क्या रहे हो कि बेचेंगे एक बार, जब इसका दाम मुझे मिलेगा तब मैं इसे बेचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें कि मिस्टर अभिजीत का टोटल संपत्ति क्या है, तब मैं उसे कैलकुलेट करूंगा, तब मैं उसे लाऊंगा कि उसका संपत्ति इतना है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा तो आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, तो वो आपका बिजनेस में ही डिपेंड करेगा कि आप अपना बिजनेस का कितना प्रतिशत टर्नओवर किया है। टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज से लेके, आपका बिजनेस से लेके, आपका सेल्स लेके, आपका एंडोर्समेंट, आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका ऑपरेशनल, आपका दुकानदारी, सब कुछ मिला के आप पूरा साल में कितना वहां से उठा रहे हो, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। कंफ्यूज मत हो जाना। और फॉर प्रॉफिट होता है फाइनेंशियल गेन, इसको अलग रखे। फाइनेंशियल गेन का मतलब क्या होता है? ये सब करने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बचता है मिडिल मैन को दे के, आपके लेबर को दे के, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल उसको दे के, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपके जो मुट्ठी भर पैसा आपका रहता है, वो प्रॉफिट होता है आपका। इज इट क्लियर? तो अगर किसी का नेटवर्क यस अगर सर। 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ इतना है, तो मत समझना कि इसका उतना प्रॉफिट है। वो उतना सेल्स, वो उतना सेल्स, इतने सालों तक उसने उतना सेल्स दिखाया है, उसने अपने बिजनेस को रोल किया है, इतना वो अपना बिजनेस को रोल किया है। एम आई क्लियर? सपोज आपका, सपोज किसी का इसका बिजनेस है, अ, क्या बोलू मैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, सपोज पेपर कपड़े का बिजनेस है, तो उसने टोटल कपड़ा का जो बिजनेस किया है, वो टोटल पूरा मार्केट में पैसा झोंक दिया है। अब उससे जितना, सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख का उसने प्रॉफिट मतलब टर्नओवर किया है, 10 लाख का उसका टर्नओवर है, उस दुकान कपड़े का दुकान का 10 लाख का टर्नओवर है। एकदम सिंपल छोटा समझो, 10 लाख का टर्नओवर का मतलब क्या? दुकान, इलेक्ट्रिसिटी, कपड़ा, भाड़ा, ये सब कुछ उसने झोंक के पूरा टोटल टर्नओवर 10 लाख है। प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? ठीक है, प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? अब जब प्रॉफिट अर्न करेगा वो कैलकुलेट कैसे करेगा? दुकान का भाड़ा अलग, इलेक्ट्रिसिटी अलग, एम्प्लॉयज का बिल अलग, एम्प्लॉयज का पैसा अलग, एडवर्टाइजमेंट अलग, मिडिल मैन जो पैसा कपड़ा ला रहा है उसका अलग। ये सब माइनस करने के बाद जितना बचता है वो प्रॉफिट गिना जाता है। और जितना वो इस दुकान में के लिए जितना पैसा वो झोंका है और सालों में जितना उठा रहा है, दैट इज टर्नओवर। ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये हमेशा ये लाइन याद रखना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लेन देन, कारोबारी लेन देन, उसमें डिपेंड करता है। समझ में आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना। यस सर, आप समझ में आ गया। समझने तो आएगा, हमको मालूम था समझ में आ जाएगा।
सर फिर सर अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट भी तो मतलब कि ऑलमोस्ट तो उसी में ही आ जाता है सर, सेम। क्या ऑलमोस्ट इसी में आया था सेम? सर हम लोग जितना का टर्नओवर मतलब क्रिएट किए एक साल में या 5 साल में, ठीक है, उसमें सर अपना प्रॉफिट जो है वो अलग हो जाएगा। वो अलग हो जाएगा। हाँ, अपना ठीक है, मान के अलग हो जाए, प्रॉफिट अलग हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट, इज समथिंग डिफरेंट। सर रेवेन्यू सर उतना हम लोग का मतलब 100 करोड़ का हम लोग का रेवेन्यू है, तो उतना रेवेन्यू हम लोग जनरेट किए। देखो, बेसिक डेफिनेशन समझ लो रेवेन्यू का, मैं बताता हूं। जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कंपनी ने जो लाया है ऑपरेशन के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, और उसको कुछ सेट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसको रखा गया है। से फॉर एग्जाम्पल, टर्नओवर तो मैंने आपको समझा दिया कि आपका टोटल पूरा सब कुछ आपका जब दांव पे लग जाता है, दैट इज टोटल, मतलब पूरा सब कुछ फैक्ट्री से लेके सब कुछ, टोटल टर्नओवर आपका इतना होता है, ठीक है। टोटल टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी का पूरा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का एंडोर्समेंट, कंपनी का ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, जहां जहां लगाता है पैसा कंपनी, उसे टर्नओवर कहते हैं, इतना समझ लो। अब रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू होता है, इट्स अ ग्रॉस इनकम बिफोर सब्सट्रैक्टिंग एनी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड टोटल अर्निंग डिफाइंड ऑन रेवेन्यू। तो अच्छा, अब समझाता हूं रेवेन्यू किसे कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है ये जो आपने टोटल पैसा लगाया, टोटल पहले अपने घर से अलमारी से पैसा निकाल के झोंक दिया, वो आपका टोटल टर्नओवर हो गया। अब क्या है ओके उसमें ओके। से, अब उसमें से आप जहां से आप कमी खरीद, मतलब आपका, मतलब आप ये कर रहे हो, पैसा वापस ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक साल हो गया है, अब आपका वापस आ रहा है, कैसे? सपोज जिसको जिसको आपने कपड़ा बेचा था उससे आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंडोर्समेंट के माध्यम से आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब एंडोर्समेंट से पैसा आ रहा है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा आ रहा है, मीडिया में पब्लिसिटी के लिए आपने दिया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, वहां से आपका पैसा, अब जहां जहां पैसा दिए थे वहां से वापस आ रहा है। अब इस पैसे को जब आप एक जगह कर रहे हो, ये हो गया आपका रेवेन्यू। यहां से आप जब सबको, सपोज लेबर को, इसको उसको जब दे रहे हो, बांट रहे हो, उसके बाद जो बचा वो प्रॉफिट। और बेसिक आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अलमारी से पैसा निकाला, बिजनेस में लगा दिया, टर्नओवर। अब जो पैसा आप लगा रहे हो, अब उठा रहे हो मार्केट से, वो आपका रेवेन्यू। वहां से आप अपना प्रॉफिट निकाल के बाकी सब बांट दिए, दैट इज प्रॉफिट। ये हो गया रेवेन्यू, टर्नओवर, प्रॉफिट का डिफरेंस। अलमारी से पैसा एकदम निकाले, कॉन्सेप्ट अलमारी से, क्लियर हो गया सर। यही तो मैं समझाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तब जाके आप पढ़ पाओगे, पकड़ पाओगे, अदरवाइज जितना भी डेफिनेशन पढ़ लो खोपड़ी में नहीं आएगा। टर्नओवर समझ लो, अलमारी खोला, दुकान में पूरा पैसा झोंक दिया, डेली आपका पैसा रोलिंग हो रहा है, डेली अपने पैसा रो रहा है, लेबर आ रहा है, नया लेबर आ रहा है, नया एम्प्लॉइज आ रहा है, नया ये आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपने झोंक दिया, आपका टर्न बिजनेस चल रहा है, टर्नओवर हो रहा है, एक साल के लिए बिजनेस जबरदस्त चला। अब क्या कर रहे हो? मार्केट से पैसा उठा रहे हो, जो पैसा आपने लगाया था, टर्नओवर किया था, अब उठा रहे हो, यहां से पैसा, वहां से पैसा, जो जो आ रहा है उठा रहे हो, वो एक जगह आपने जमा किया, दैट इज रेवेन्यू। अब वहां से रेवेन्यू अलग करके जो आपका प्रॉफिट है आपने अपना घर में ला दिया, दैट इज प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू, दैट इज टर्नओवर। इससे इजी वे में मुझे नहीं लगता और आप समझा पाऊंगा। दिस इज द मोस्ट easiest way that I have explained you, that what is the difference between revenue, turnover and profit। ठीक है? ओके सर। ओके, और कोई डाउट है? नहीं ना, नहीं है ना? नो सर। ये तनुजा है क्या? तनुजा क्लियर है? यस सर, हम सुन ही रहे हैं। नहीं, आई नो यू आर लिसनिंग, बट माई पॉइंट इज whether it is clear or not, सर क्लियर। as because if you expect the slides to be given in a broad, with a broad description, then it cannot be possible, because slides में इतना descriptions नहीं रहता है। I need to, means you need to understand those things, or rather it is my responsibility to make you understand in that way. So this is the बस always, बस बनाइए तो समझ आ जाएगा, लाइक थोड़ा सा।
क्वेश्चन निकाल कर। हाँ, तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब ना समझ में आएगा। हाँ You need to work hard on that. You need to study. You need to study from other references. You need to go through the books or Google and all. Then only you can understand that what is the difference between revenue, turnover and profit. So हमेशा याद रखना, अगर कंपनी का टर्नओवर 900 करोड़ है, 1000 करोड़ है, इसका मतलब क्या, बाप रे बाप इतना पैसा कमा रहा है, छाप रहा है? नहीं यार, टर्नओवर रोलिंग कर रहा है, घर का पैसा है उतना, उसने लगाया है उतना, उसका टर्नओवर कर रहा है। जैसे जियो, मुकेश अंबानी ने का बिजनेस है, कितना, 1000 2000, उससे ज्यादा ही होगा, करोड़ का टर्नओवर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्नओवर? मतलब क्या, जितना बिजनेस उसने पैसा लगाया, रोलिंग कर रहा है, उसका हर साल उसका रोलिंग हो रहा है, ये पैसा हर साल रोलिंग हो रहा है, लेबर ये वो जहां जहां वो लगाया रोलिंग हो रहा है। अब वहां से जब पैसा उठा के वो सब जगह से ला रहा है, हमारे से कस्टमर, जैसे हम जैसे कस्टमर से बेवकूफ बना के ले रहा है, नेटफ्लिक्स के नाम पे, इसका नाम से, ये सब पैसा उठा रहा है, एक जगह कर रहा है, दैट इज रेवेन्यू। अब वहां से वो अपना हिस्सा निकाल रहा है, क्योंकि यहां पर भी तो पार्टनरशिप है ना, वो अकेले तो नहीं है, उसमें अनंत अंबानी का नाम है, उसमें उनकी वाइफ की नाम का है, सब अलग अलग बिजनेस पार्टनर्स है ना। दे ऑल आर द डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स, दो दे आर फैमिली, दो आर रिसाइडिंग इन वन अंटीला, मींस वन कॉम्प्लेक्स, बट दे आर द डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स। उसका अलग अलग शेयर्स है, हिस्सा है, जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब प्रॉफिट घर में आता है, दैट ईच एंड एवरी शेयर इज बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी ऑफ member of that particular families. This is the called the profit part. Profit is always been calculated on a financial part, that is monetary part. But revenue and turnover is something different. Am I clear? Is it clear? Now, what is the meaning of this operational efficiency? Now, turnover indicates sales performance, while profit indicate overall financial health. टर्नओवर क्या होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में? आपका सेल्स परफॉर्मेंस कैसा है? एक गोलगप्पा का दुकान है, और सिंपल वे समझाता हूं, सिंपल, छोटा, प्रिसाइज। एक गोलगप्पा का दुकान है, हर दिन वो सपोज करो 100 प्लेटें गोलगप्पे बेचता है, 100 प्लेट्स गोलगप्पा, एक प्लेट की कीमत 50 रुपया, 100 प्लेट का 5000, महीने का 1.5 लाख, सॉरी ना, महीने का 15,000, साल का 1.5 लाख, और इधर हो गया और दो, 15 15 30, 1,80,000 का उसका टोटल क्या है, 1,80,000 का टोटल टर्नओवर है। अब उसमें से प्रॉफिट, आलू खरीदा, मैदा खरीदा, तेल खरीदा, तेल वाले को दिया, आलू वाला को दिया, हर एक दिन का तो नहीं देता ना, हफ्ते में कभी कभी पेमेंट करता है, कभी कभी महीने में करता है। आलू का एक बोरा उठा के लाया, कब पेमेंट करोगे? हफ्ते में या महीने में करेंगे। आलू वाला को दिया, उसके बाद जो लेबर रखा है उसको दिया, प्लेट धोने वाले को जो है वो तो नहीं करेगा, तब तो सेल नहीं कर पाएगा। प्लेट धो रहा है, एक जन धो रहा है, उसका दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उसको दे रहा है, जहां पर दुकान का ठेला लगाया है उसको दे रहा है, उसका भी तो टैक्स देना है ना, उसको दे रहा है। ये सब उसने दिया, वो सबको दिया। अब उसके पास जितना बचा, घर से वो इतना दिया, इतना उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना उसका पॉकेट में आया। तो ये जो पॉकेट में आया, दिस इज द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस। क्लियर है? क्लियर यस है? सर। अब गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल एमबीए में मत लिख के आ जाना। नो सर। ओके मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, यस, increased turnover can have different meanings depending on the context. Increased turnover have different meaning depending on the context. Increased turnover का मतलब क्या है? टर्नओवर इंक्रीज्ड हो रहा है, टर्नओवर डिक्रीज्ड हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है? इन बिजनेस देखो क्या लिखा है, हाई सेल्स इंक्रीज टर्नओवर कैन इंडिकेट ग्रोइंग सेल्स एंड रेवेन्यू। ये तो बच्चों को मालूम है। इंक्रीज टर्नओवर का मतलब होता है आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है। वाइल इन एचआर, देखो बिजनेस का अलग है, बिजनेस में इसका अलग है, लेकिन एचआर में इसका अलग है। हायर एम्प्लॉय टर्नओवर, इंक्रीज टर्नओवर कैन इंडिकेट ए हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन which can be costly and impact productivity.
अगर आपसे कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज टर्नओवर इन बिजनेस एंड इंक्रीज टर्नओवर इन एचआर, दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट मतलब है। इंक्रीज टर्नओवर इन बिजनेस, हिंदी में समझा रहा हूं, समझ लेना। इंक्रीज टर्नओवर इन बिजनेस में अगर कहा जाए, मतलब क्या है, उस कंपनी का सेल्स अच्छा है, उस कंपनी का सेल्स एफिशिएंसी जबरदस्त है, ग्रोइंग है, और रेवेन्यू अच्छी तरह से जनरेट हो रहा है। वहीं पर इंक्रीज टर्नओवर एचआर में जो है, स्पेशली इन एम्प्लॉइज, इसका मतलब होता है एक कंपनी में एवरी डे एम्प्लॉइज आ रहा है, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद एम्प्लॉइज छोड़ रहा है। तो अगर इस प्रोसेस में चलता रहा तो अकॉर्डिंग टू एचआर उस कंपनी का बेड़ा गर्क है। अगर एवरी डे नए एम्प्लॉइज आ रहा है, आप खर्चा करके उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग करने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो छोड़ के चला जा रहा है, फिर दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, फिर उसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर वो काम कर रहा है, फिर निकल के छोड़ के चला जाए दूसरे के पास, अगर ये ऐसा चलता रहे तो वो कंपनी फिर इंक्रीज टर्नओवर का मतलब एचआर में लॉस, टोटल लॉस। तो हमेशा याद रखना, इंक्रीज टर्नओवर अगर आप किसी सपोज somebody asks you what is the meaning of increased turnover, so there is a basic difference between increased turnover in human resources definition and increased turnover definition in business. In business increased turnover का मतलब होता है good sales, profit, revenue, और एचआर में इंक्रीज टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉइज आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी बहुत लॉस में है, घाटा में है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। फाइनेंस में क्या कहते हैं, एक बिजनेस में इसे कहते हैं, एचआर में ये कहते हैं। नाउ फाइनेंस, इंक्रीज ट्रेडिंग एक्टिविटी, इंक्रीज टर्नओवर कैन रेफर टू हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन। फाइनेंस में इसे हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं, हायर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कहते हैं, या हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लेन देन करना, ट्रांजैक्शंस मींस लेन देन करना। तो दो प्रॉफिट एक नेगेटिव, बिजनेस में प्रॉफिट, फाइनेंस में प्रॉफिट, लेकिन एचआर में इंक्रीज टर्नओवर का मतलब होता है लॉस अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय सिलेक्शंस। एम्प्लॉय के हिसाब से इंक्रीज टर्नओवर अगर किसी एचआर ने लिख दिया कि हमारे यहां इंक्रीज टर्नओवर है कंपनी में एम्प्लॉयज को रिलेटेड, इसका मतलब है उस कंपनी का लॉस चल रहा है। इंक्रीज टर्नओवर का मतलब होता है कि पैसा अभी आप सेल्स में नहीं, आपने अपने ही लोगों पे खर्चा कर रहे हो। अगर आपने अपने ही लोगों पे बार बार खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल आपको इसको अच्छी तरह से समझ रहा हूं, देखिए, अगर फर्ज करो कोई एक व्यक्ति इनकम कर रहा है, किसी पर्सन एम्प्लॉय है, घर में एवरी डे एवरी मंथ वो पैसा ला रहा है, ठीक है, एवरीडे पैसा ला रहा है, ठीक है, एवरीडे पैसा ला रहा है। अब क्या हुआ, घर के ही सदस्य को ही एवरीडे हॉस्पिटल में दौड़ना, डॉक्टर के पास दौड़ना, पैसा निकल रहा है, बार बार निकल रहा है। इसका मतलब हमारे घर में इंक्रीज टर्नओवर हो रहा है। तो हमारे घर में इंक्रीज टर्नओवर का मतलब क्या है, हमारे घर में लॉसेस चल रहे हैं। अगर हमारे घर के फैमिली के मेंबर में हर महीना हर दिन किसी को दवा दारू करना पड़े इस महीने की सैलरी में से, तो क्या होगा, हमारा इंक्रीज टर्नओवर क्या होगा, इट इज बिन लॉस, हमारा लॉस है। सपोज 30 तारीख को इतना सैलरी आता है, उसमें से दूध वाला, उसमें पेपर वाला, महीने का राशन, टीवी का रिचार्ज, मोबाइल का, घर में 2-3 स्मार्ट मोबाइल है उसका रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, सब्जी मंडी, आटा दाल चावल, ये सब खर्चा हो रहा है। अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, डॉक्टर के पास एवरी मंथ जाना, एवरी मंथ डॉक्टर के पास जाना, इसका मतलब क्या है, लॉस चल रहा है, लॉस, द कंपनी इज लॉस। इसका मतलब क्या, घर का जो पैसा है हम जितना जमाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं,
हमारे पास नहीं रह रहा, अलमारी से पैसा निकल चल जा रहा है, हमारे पास जीरो बैलेंस बच रहा है। एम आई क्लियर? तो कंपनी एचआर पॉलिसीज में अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉइज अगर दिन भर यही करते हैं, हफ्ते में चेंज होते रहते हैं बार बार, मतलब उस कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बहुत कम है या बहुत छोटा है, या पर लॉस में रन हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। तनुजा, इज इट क्लियर? फीडबैक दिया करो, अदरवाइज मैं बार बार बोलूंगा स्लाइड चेंज करने के लिए, फिर खत्म हो जाएगा। फीडबैक दिया करो, समझ में आया कि नहीं आया, बार बार पूछूंगा नहीं। ठीक है, मतलब तुम निकल गई हो, कोई बात नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ टर्नओवर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टर्नओवर्स? पहला है एम्प्लॉय टर्नओवर, दूसरा है इन्वेंटरी टर्नओवर, तीसरा है एसेट टर्नओवर। और है क्या मैम? हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नओवर। ओके, चौथा है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, पांचवा है पोर्टफोलियो टर्नओवर। दिस 5 टाइप्स ऑफ टर्नओवर आर देयर। नाउ वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ पहला है एम्प्लॉय टर्नओवर। एज आई हैव टोल्ड यू, इन द एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है? It is referred to which the rate at which employees leave an organization and are replaced by the new employees. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है, टर्नओवर का मतलब मैंने समझाया ना, रोटेटिंग। इट्स अ रोटेशनल प्रोसेस। एवरी टाइम इट इज रोटेशनल प्रोसेस। ओके, एवरी टाइम इट इज अ रोटेशनल प्रोसेस, मतलब टर्नओवर का मतलब रोटेशन। तो देखो, कंपनी टर्नओवर का मतलब होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है? किसी ने कहा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयज का टर्नओवर इतना है, तो समझ लो उस कंपनी का लॉस है। कैसे? कि ऐसा है कि कंपनी, इसका मतलब है एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो एवरी डे या फिर एवरी वीक या एवरी मंथ कंपनी छोड़ के जा रहा है। तो अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है और रिप्लेस कर रहा है नए एम्प्लॉय से, इसका मतलब है कंपनी थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, क्योंकि कंपनी को खर्चा करना पड़ रहा है उस नए एम्प्लॉय को फिर ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग देना इस टाइम पीरियड, इस टाइम ना, आपने इतना पैसा खर्चा करके उस एम्प्लॉयज को सिखाया पढ़ाया, इतने मतलब सालों में आपने उसको पेमेंट किया, उसको सैलरीज दिया, बट अचानक उन्होंने बिना बोले छोड़ के चला गया या बोल के ही छोड़ के चला गया, उसके मतलब नया आएगा, नया को टाइम लगेगा, आपका सेल्स प्रोडक्शन सब गिर जाएगा उसकी वजह से। ऊपर से क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, दैट यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रेनिंग टू ट्रेन हिम, टू ट्रेन दैट एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है, ये ऐसा ही है कि एम्प्लॉयज बार बार चेंजेस होना। नेक्स्ट है इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर मींस हाउ क्विकली कंपनी सेल एंड रिप्लेस इट्स प्रॉफिट। इन्वेंटरी, ए हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेट कैन इंडिकेट एफिशिएंट इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी मींस द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। सर एक डाउट था। हम्म सर यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय के पीछे हम मतलब कि जितना हम लोग रेवेन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आउटकम्स नहीं निकल रहा, इसलिए हम लॉस में जा रहे हैं। तो सर प्रॉफिट भी तो इसका होगा, प्रॉफिट भी तो टर्नओवर होगा ना, मतलब जो जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉफिट दे रहे कंपनी को, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब तुमने जैसे आप समझे? एम्प्लॉय टर्नओवर को आप जैसे बोले कंपनी मतलब कंपनी लॉस में जा रहा है, तो सर कोई कंपनी ऐसा भी तो होगा कि जिसका एम्प्लॉय से एम्प्लॉय कंपनी को, डिक्रीज टर्नओवर, एम्प्लॉय डिक्रीज टर्नओवर। तो यहाँ से डिक्रीज तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, मतलब क्या, हर एक हफ्ते में, दिन में 2 बार, या हफ्ते में 1 बार, या हफ्ते में, महीने में एम्प्लॉयज चेंज होते रहता है। दैट इज ओके। कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी, एम्प्लॉय टर्नओवर। अब ओके। डिक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एम्प्लॉयज छोड़ते ही नहीं है, कंपनीज कंटिन्यू लोग काम कर रहा है। ऐसा भी बहुत सारा कंपनी है। क्या तुमको लगता है टाटा स्टील में जो काम करते हैं हर महीना हर हफ्ता छोड़ देता है? ऐसा नो। होता है? कभी नो नहीं। सर। वहां पर क्या है? डिक्रीज टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर है, वहां पर डिक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर है। अच्छा अच्छा। टर्नओवर सबसे पहले क्या बताया तुमको? तुमने कंफ्यूज हो जा रहे हो, रेवेन्यू के साथ जोड़ो। मैंने कहा रेवेन्यू का बात यहाँ पर अलग है, मैंने गोलगप्पा का एग्जांपल देके समझाना। रेवेन्यू समथिंग डिफरेंट। मैं टर्नओवर का बात करूं, टर्नओवर का मतलब क्या है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, स्पेसिफिक मेजर में आप अपना टोटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हैं।
दैट इज कॉल्ड टर्नओवर, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज अ ओके कंटिन्यूअस प्रोसेस, रोलिंग प्रोसेस, दैट इज अ रोलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हाई एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है, एम्प्लॉयज हाई टर्नओवर का मतलब होता है क्या, एम्प्लॉय बार बार चेंज हो रहा है। टर्नओवर का मतलब रोल हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक जगह पर काम टिक के नहीं कर पा रहा है, बार बार छोड़ के चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पर वो लॉस में रन कर रहा है। तो जिस कंपनी का डिक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर रहेगा, ये मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत हाई है। डिक्रीज टर्नओवर एम्प्लॉय, डिक्रीज टर्नओवर, डिक्रीज टर्नओवर एम्प्लॉयज का मतलब होता है उस कंपनी का एम्प्लॉयज कभी छोड़ के जाता ही नहीं है। जैसे टाटा स्टील प्लांट या रेलवे में जो जॉब करता है, रेलवे इस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी तो लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं। कभी सुना है एक दिन छोड़ के चला गया, एक दिन काम नो करने सर। के बाद रिजाइन दे दिया? बहुत कम, रेयर, 99 में 0.001% ऐसा होता है। तो दीज आर द कॉल्ड द डिक्रीज टर्न एम्प्लॉय टर्नओवर। यहां पर ये टर्म आएगा, यहां पर मैम, यहां पर इस स्लाइड में उस चीज को मेंशन नहीं किया है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज आ रहा है। वहां पर सर डिक्रीज कल भी एम्प्लॉय कल भी टर्नओवर। एक टॉपिक आप पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें सर इंक्रीज था, उसमें एक वर्ड का बोल रहे थे ना कि डिक्रीज होगा। हाँ, तो क्योंकि वहां पर लिखा था एम्प्लॉयज टर्नओवर हो रहा, नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा वहां पर डिक्रीज हो लिखना हुआ, तो मन सर ने गलत से इंक्रीज लिख दिया है। नहीं तो सर वो इंक्रीज ही होगा, मैम कल फोन की थी मुझे, हम्म। तो मैम ने कहा था कि आपको बता देंगे बोल के। हम्म। ओके। यस। हम्म। ओके। हम्म। ओके। ओके मैम। ओके मैम। Now next come inventory turnover. Inventory turnover, in the sense it is called the investment turnover. Now what is the meaning of this investment turnover? Investment turnover means how the turnover measure how quickly a company sells and replace its investments, or a high investments turnover can rate indicate efficient inventory management. वही सेम बात है यहाँ पर कि जितना टर्नओवर आप क्विकली कंपनी का सेल्स, कंपनी को प्रॉफिट जनरेट, कंपनी रेवेन्यू, कंपनी जितना अच्छा टर्नओवर दिखाएगा अपना इन्वेस्टमेंट में, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट, इतना ही ज्यादा रेवेन्यू, इतना ही ज्यादा टर्नओवर वो दिखा पाएगा। ओके, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर और इन्वेंटरी टर्नओवर में अलग अलग है। इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है द कंपनी का जो एम्प्लॉयज है दैट इज ऑन अ रोटेशनल बेसिस, मतलब एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ एम्प्लॉयज छोड़ के चला जा रहा है। दैट इज नॉट अ परमानेंट स्टे ओवर देयर। ओके, थोक में छोड़ के चला जा रहा है फिर ज्वाइनिंग हो रहा है, तो दैट इज नॉट अ, हम उसे फिर प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, घर में आपका एवरी मंथ सैलरी आ रहा है, ठीक है, घर में सपोज करो हम लोग 5 मेंबर्स है, फर्स्ट करो वी ऑल आर एम्प्लॉइज, फर्स्ट करो वी आर ऑल आर एम्प्लॉइज, ठीक है जी। अब अगर एम्प्लॉय स्वस्थ रहेंगे रहेंगे तो फिर हमारा खर्चा जो है हम लोग के ऊपर नहीं आएगा ना, खर्चा फिर हम लोग का जो जो हो रहा है इसका मतलब बचत हो रहा है। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा आने स्टार्ट हो गया, दैट इज इंक्रीज हो गया, फिर वो इंक्रीज हो, वो खर्चा इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयज का ऊपर जो आया गया
वो खर्चा फिर इंक्रीज हो गया। अगर खर्चा अपना ही इंटरनल एसेट में खर्चा ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, आपका घर का पैसा आपका निकल रहा है, तो वी फिर उसे दैट वी काउंट इन द लॉस। अगर अकाउंट्स के स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे लॉस स्टेटमेंट में हमको दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बनाएंगे ना, तब उसे हम लॉस स्टेटमेंट में हमको दिखाना पड़ेगा दैट कंपनी इज रनिंग इन लॉस। एक और टर्म आता है दैट डिक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। तो डिक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मतलब है उस कंपनी का एम्प्लॉयज जो है वो परमानेंटली वहां पर है। जैसे टाटा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत कम ही रिप्लेसमेंट होता है। तो वहां पर क्या है, डिक्रीज एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियो है कंपनीज का। ठीक है, अलग अलग वर्ड का अलग अलग मतलब है। एम आई क्लियर? कल मैंने जो यस बताया था सर। वो जॉब स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैंने बताया था, मैंने उतना गौर नहीं किया है। अगर वो स्लाइड दिखाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। आई थिंक जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में वो कुछ था वहां पर, मैं उस कंटेंट को जोड़ के मैंने बताया था कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, दैट इज एन अनदर टॉपिक। ओके, उसके बाद है, चला गया, हाँ ओके, उसके बाद है एसेट टर्नओवर। Asset turnover measures the efficiency of a company's use of its asset to a generate sales. A high asset turnover rate can indicate effective asset utilization. Asset का मतलब संपत्ति, जितना ज्यादा एसेट आप टर्नओवर दिखाओगे, जितना ज्यादा एसेट को आप एक्यूमुलेट करके उसका एफिशिएंसी वे में आप टर्नओवर दिखाओगे, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप जनरेट करोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका एक प्लॉट, मैंने बताया आपका एक प्लॉट ऐसा ही पड़ा हुआ है, दैट इज एन एसेट। वो एसेट आपका काउंट में आएगा, बट दैट विल काउंट एज एन इमूवेबल एसेट। अकाउंट स्टेटमेंट में एक और वर्ड आता है, मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट। तो वो आपका इमूवेबल एसेट में गिना जाएगा। कैसे? एज बिकॉज दोज एसेट्स नथिंग यू कैन यूज यूटिलाइज ऑफ देम। वो पड़ा हुआ, आप खरीदा है वैसे ही पड़ा हुआ है, ना आज तक आपने उसका कुछ यूटिलाइजेशन किया है, ना आप आज तक उसका आपने टर्नओवर दिखाया है। जैसे ही आप उस एसेट को टर्नओवर दिखाओगे, जैसे ही एसेट को आप यूटिलाइजेशन करोगे, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड टर्नओवर एसेट। ठीक है, तो एसेट को टर्नओवर इसलिए किया जाता है, संपत्ति को एसेट टर्नओवर इसलिए किया जाता है ताकि सेल्स जनरेट करे। अगर सेल्स जनरेट करे, जितना ज्यादा सेल्स, जितना ज्यादा टर्नओवर, उतना ही ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल रेवेन्यू और उससे आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। दिस इज कॉल्ड एसेट यूटिलाइजेशन। समझ में आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ टर्नओवर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल turnover. What is this? Account receivable turnover measure how quickly a company collect its outstanding receivable. Outstanding का एक और मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, एक और वर्ड होता है बैलेंस। आपका बैलेंस कितना बाकी है, जितना बैलेंस को जितना जल्दी आप उठा सकते हो मार्केट से, उतना ही आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि कहा जाता है कंपनीज का पैसा अगर जितना बाहर पड़ा हुआ रहेगा ना, उतना टैक्स उनको देना पड़ता है, या उतना ही उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, उतना ही उसका लॉस हो जाता है। इसलिए कंपनी बहुत जितना जल्दी हो सके ना पैसा अपना मार्केट से उठा लेता है, ताकि वो दूसरी जगह फिर यूटिलाइजेशन कर सके। एम आई क्लियर? पैसा पड़ा हुआ जितना रहेगा ना, उतना कंपनी के लिए लॉस है। ओके, उसके बाद है पोर्टफोलियो टर्नओवर। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेफर्स टू द रेट एट विच पोर्टफोलियो एसेट्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। अ हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट कैन इंडिकेट एक्टिव मैनेजमेंट। जितना आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जितना आप उसका रेवेन्यू जनरेट करोगे, जितना आप उसका सेल्स हाई दिखाओगे, इनकम हाई दिखाओगे, उतना ही आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नओवर। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यस सर। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ पुअरली इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ पुअरली इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जितना ज्यादा परफॉर्मेंस आप इंप्लीमेंट पूरी तरह से इंप्लीमेंट करोगे, खराब तरीके से अगर इंप्लीमेंट करोगे, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेटेजीज, ओके, आप जितने तरह से डिसीजंस मेकिंग, जितना तरह से आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, उतना ही आपको पुअर मैनेजमेंट या उतना ही आपको पुअर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे इंक्रीज टर्नओवर, पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैन लीड टू इंक्रीज टर्नओवर as employee may feel undervalued or unfairly treated। ठीक है,
जितना ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस होगा मैनेजमेंट का, कल तो मैंने शायद इसको पढ़ा था, सेम चीज रिपीट हो रहा है मैम, लीगल इशू, बायस, इनसफिशिएंट डेवलपमेंट, ये शायद मैंने पढ़ा दिया कल, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अ कंपनी, आई थिंक आई हैव। हो देखो, देखो क्लियर, देखो अब इस कंसेप्ट को क्लियर करो पहले, मैंने क्यों क्यों बोला है। देखो क्या लिखा है, इंक्रीज टर्नओवर, हेडिंग्स दिया है इंक्रीज टर्नओवर। मैम आपने बंद कर दिया। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर दिया है इंक्रीज टर्नओवर, मेक अ लुक एट द डेफिनेशन, लुक एट द पर्टिकुलर सब टॉपिक्स। इंक्रीज टर्नओवर स्टार्टिंग कैसे कर रहा है, पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, poor performance management can lead to increased turnover as employee may feel undervalued or unfairly treated। वो अलग था जो मैंने बताया था, ये एकदम अलग है। देखो पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का पुअर परफॉर्मेंस रहेगा तो क्या होगा, टर्नओवर इंक्रीज कैसे होगा, एज एम्प्लॉय में फील अंडरवैल्यूड और अनफेयरली ट्रीटेड। एक बात हो सकता है, एक बात इसमें हो सकता है जहां पर मुझे लगता है मैम कुछ लाइन मिस हो गया है। इंक्रीज टर्नओवर कैसा होगा, एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेटेड होगा, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, फिर दूसरा एम्प्लॉइज आएगा, फिर छोड़ के चला जाएगा, फिर आएगा, तब जाके ये वर्ड यहां पर एग्जैक्टली होता है कि इंक्रीज टर्नओवर। ओके, अगर पुअर परफॉर्मेंस रहेगा मैनेजमेंट का, हम्म हम्म हम्म, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग है मैम, टर्न ओवर, उसके बाद देखिए कॉमा देखिए लिखा है एज एम्प्लॉय में फील अंडरवैल्यूड और अनफेयरली ट्रीटेड। तो अनफेयरली ट्रीटेड अंडरवैल्यूड तब होगा जब कंपनी छोड़ के, तब तो एम्प्लॉय चला जाएगा, तब जाके ये वर्ड को प्रूफ होता है कि दैट इज इंक्रीज टर्न ओवर। तो यहाँ पर हाँ, खड़े छोड़ के चला गया। हम्म, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसी संदर्भ में बोला था मैं, मुझे लगा कि कुछ लाइंस यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए मैंने बोला था। ठीक है मैम, ठीक है। ओके अभिजीत, आई थिंक ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। अभी क्लियर है डाउट्स? यस सर। ओके चलो, थैंक यू। कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक के लिए। आज ये कंप्लीट हो गया, टर्नओवर, रेवेन्यू, प्रॉफिट, जितना भी था, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेल्स, जो भी था क्लियर हो गया। ये छोटा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम लोग फिर सर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे क्या। सर ये ला टॉपिक सर, सर ये ला मैम वो स्लाइड प्लीज ओपन कीजिए, लास्ट स्लाइड। यही तो सर लास्ट इस स्लाइड है। हम्म, सर इसका 7 और 8 पॉइंट। सब तो बताए थे, इनसफिशिएंट डेवलपमेंट, फेलियर टू आइडेंटिफाई डेवलपमेंट नीड्स कैन लीड टू स्किल गैप एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस। अगर डेवलपमेंट आप अपने तरफ से सोचो ना, अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, आप इनसफिशिएंट हो, आप में स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, मोटिवेशन मोटिवेटेड नहीं हो, यू आर नॉट पंक्चुअल एबल, तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, गैप्स क्रिएट होगा। अगर गैप्स क्रिएट होगा तो कंपनी आपका परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाएगा ना, because lot of responsibilities on your head, on your shoulders are being given as you join the company. So whenever you are decreased, whenever your development is going to decrease, deficiency की तरफ, नीचे की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब क्या, the company is also going to face the same problem, your performance, based on your performance ना, the company can
look over to the make a strategy for a 5 years. So when there is a deficiency in your performance, in your skill, then what will happen? Or insufficient in your development, the performance will going to lose. And if the performance will going to lose, then what will happen? What the 5 years plan, what the every company is made the 5 years plan, that will go down. अचीव करने में दिक्कत होगा. ठीक है, तो insufficient development. Next है negative impact on company's culture. I have already told you a lot of cultural pullback, leg pulling, PNPC, पीछे से कुछ ये करना, किसी के बारे में बोला. इस तरह का कल्चर अगर रहेगा किसी कंपनीज में, रहता है, लॉट ऑफ कंपनीज में इस तरह का रहता है, एवरी सेक्टर में ये रहता है, तो क्या होगा? मैनेजमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट गिरेगा. तो मैनेजमेंट में अगर नेगेटिव इंपैक्ट गिरेगा तो कल्चर लीडिंग, अभी जैसे फॉर मैं एग्जांपल अभी आप लोग बता रहा हूं, अभी जो पुलवामा अटैक हुआ है, आप विश्वास कीजिए नेगेटिव कैसे हो रहा है. मैं बता रहा हूं, अभी जो पुलवामा नहीं सॉरी पहलगाम जो अटैक हुआ है, हमारे एजुकेशन में, मैं आपको सिंपल 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, देखो कैसे होता है, मैनेजमेंट किस तरह से गिर जाता है, मतलब कैसे हो जाता है, पुअर कल्चर कैसे होता है. अभी पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है 22 को, ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेशन में, हमारे यहाँ, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग, ज्यादा मत पूछना, हमारे यहाँ एजुकेशन में बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज भी है, मुस्लिम फैकल्टीज है, दे पढ़ा